رمضان پیکج کا جو وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا اور اس کے لیے اربوں روپے کی گرانٹ مختص کی کہ رمضان میں ہماری یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے پاکستان کے شہریوں کو معیار کی سستی اشیاء دستیاب ہوں۔ الحمدللہ آج ضلع ملتان میں اور ملتان شہر میں ہم رمضان پیکج کے آغاز کا افتتاح کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن معیاری چیزیں شہریوں کو مہیا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے بعد رمضان بازار بھی لگیں گے اور پھر ان رمضان بازاروں کو سہولت بازاروں کی شکل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جو روزمرہ کی اشیاء ہے اور وہ آئٹمز جو ہیں غالباً 18 ہیں 19 ہیں، وہ 19 آئٹم جو ہیں وہ شہریوں کو کنٹرول پرائسز پہ دستیاب ہوں۔ ہماری کوشش ہے اور اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ وزیر اعظم خود تقریباً ہر ہفتے میٹنگ لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو قیمتیں ہیں انہیں مستحکم کیا جائے اور عام شہری کو ریلیف دی جائے۔ ہمیں مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے مافیاز کا، وہ لوگ جو عادی ہیں ذخیرہ اندوزی کے، سٹہ بازاری کے اور لوگوں کا خون چوسنے کے۔ ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں چیزیں درآمد کر کے۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے جو کئی دفعہ نہیں ہوتا، آرٹیفیشلی کریٹ کیا جاتا ہے اپنا منافع بڑھانے کے لیے، اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کو ذمہ داریاں دی ہیں اور ٹیکس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم قیمتوں کو کنٹرول کریں۔ ایک اچھی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ اب مستحکم ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو 166 کو چھو رہا تھا آج وہ 152 پر آ گیا ہے۔ تو اس سے بھی انشاءاللہ مہنگائی کی کمی میں جیسے قدر ہوگی روپے کی بہتری ہوگی اور ڈالر کم ہوگا تو جو امپورٹڈ اشیاء ہیں اس پر بھی فرق پڑے گا۔ جو بھی ممکن ہے حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ملتان حاضر ہوا تھا پچھلی مرتبہ اور آپ نے سوال اٹھائے تھے جنوبی پنجاب کے سلسلے میں، چنانچہ میں نے اس چیز کو آگے بڑھایا اور آج میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا، جنہوں نے میری درخواست پر کل لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں تمام جنوبی پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی سے ملاقات کی، جس میں جنوبی پنجاب کے جو صوبائی اسمبلی کے وزراء ہیں، جو بزدار صاحب نے ایک سب کمیٹی کیبنٹ کی سب کمیٹی تشکیل دی تھی، ہمارے وزیر خزانہ مختوم ہاشم جمع بخت کی سربراہی میں وہ بھی موجود تھے، ہمارے راجن پور سے تعلق رکھنے والے ڈپٹی اسپیکر جناب مزاری صاحب وہ بھی موجود تھے، مشیران بھی موجود تھے، وزراء بھی موجود تھے۔ تبادلہ خیال ہوا اور اس کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جو نوٹیفیکیشن جس کے ذریعے 29 مارچ کا جس کے ذریعے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ واپس کر لیا گیا اور اس کی اب کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی۔ وہ نوٹیفیکیشن جس کے ذریعے اختیارات مختص کیے گئے تھے، یعنی کہ 11 ستمبر 2020 کا نوٹیفیکیشن،
جس میں رولز آف بزنس بھی ترمیم کی گئی تھی، جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو خود مختار اور بااختیار بنانے کی، اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو کمیاں پیشی رہ گئی تھی اور اس کو کیبنٹ نے اپروو کر دیا تھا، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا تھا۔ جو کمی پیشی تھی اس کے لیے مزید اصلاحات کی گئیں اور دسمبر 2020 کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کو کیبنٹ نے منظور کر دیا، اور اس کا ابھی گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا۔ کل انہوں نے احکامات فرما دیے ہیں کہ اس کا بھی فی الفور گزٹ نوٹیفیکیشن کر دیا جائے۔ اب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ فی الفور فنڈز کا اجرا کیا جائے، اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ملتان میں، تو ملتان کے سیکریٹریٹ کے لیے جو فنڈز درکار تھے اس کی ریلیز پہلی قسط کی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں ملتان تشریف لائیں گے، بہاولپور بھی تشریف لے جائیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے ان بااختیار خود مختار سیکریٹریٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ جی، یہ پہلی جو قسط جو ابھی جو کل ریلیز ہوئی ہے وہ 70 کروڑ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں، ایک اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس سال کا جو بجٹ آئے گا اگلے مالی سال کے لیے، جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ ہوگا، اس کی علیحدہ کاپی ہوگی، اس کی علیحدہ ADB کی بک ہوگی، اور منصوبے جو ہیں بالکل ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ جنوبی پنجاب کے منصوبے ہیں۔ ہوتا کیا تھا ماضی میں، پچھلے دور میں کیا ہوتا رہا؟ نون لیگ کے دور میں جنوبی پنجاب کے لیے بجٹ میں ایک خطیر رقم رکھ دی جاتی تھی، اور دوران سال اس کو اور منصوبوں پہ منتقل کر دیا جاتا تھا ری اپروپریشنز کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ جو نون کہتی ہے، شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہم نے جنوبی پنجاب کی آبادی کے بارے میں کے مطابق ہم نے 33% پنجاب کا ڈیولپمنٹ فنڈ جنوبی پنجاب کے لیے مختص کر دیا ہے۔ انہوں نے درست کہا تھا، لیکن جب ہم نے ریکارڈ چیک کیا تو سال کے اختتام پر جو ایکچولی جنوبی پنجاب پر خرچ ہوا وہ 17% تھا۔ 33% دکھایا گیا اور 17% خرچ کیا گیا۔ اب جو طریقہ کار ہم نے بنایا ہے اس سے اب اس کی ری اپروپریشن ممکن نہیں ہوگی۔ جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب پہ ہی لگے گا، جنوبی پنجاب سے باہر منتقل نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی سلو موونگ پروجیکٹ ہے جنوبی پنجاب کا اور پیسہ منتقل کرنا ہے تو جنوبی پنجاب کے کسی فاسٹ موونگ پروجیکٹ کی طرف کیا جائے گا، نہ کہ باہر کی طرف۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، جس سے انشاءاللہ جنوبی پنجاب کی جو ترقیاتی محرومیاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت بڑا اور ایک تاریخی فیصلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم نے یہ گزارش کی ممبران نے اور وزیر اعظم نے اس سے اتفاق کیا کہ جب جنوبی پنجاب میں ٹیلنٹ موجود ہے، یہاں قابل لوگ موجود ہیں، ان کو مواقع نہیں ملتے، ہم اگر سندھ میں محروم علاقوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے اربن اور رورل کوٹا مختص کیا ہے، تو پھر جنوبی پنجاب کا جو پسماندہ اور محروم علاقہ ہے جہاں قابل بچے ہیں ان کو میرٹ پہ بھرتی کیا جائے، لیکن جنوبی پنجاب کا علیحدہ کوٹا ہونا چاہیے۔ اس کا بھی تحریک انصاف کی حکومت نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوٹا کا فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو کل سرکاری سیٹیں ہوں گی اس میں ایک حصہ جنوبی پنجاب کا ہوگا، اور جنوبی پنجاب کے بچے جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کریں گے۔ راجن پور کا بچہ بہاولپور سے، وہاڑی کا ملتان سے، ملتان کا لودھرا سے، یہ کمپٹیشن ہوگا، اور اس میں جو اہل بچے ہوں گے میرٹ کی بنیاد پر وہ سروسز میں آئیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ علاقہ
जो सर्विसेज में कदर कम है उनकी नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। नंबर 2, हमें जो तकलीफ़ होती है यहाँ जब लोग आ जाते हैं, वो आने के बाद या तो कोशिश करते हैं कि वो अपना तबादला यहाँ से फौरी करवाएं, 2-4 महीनों में वापस जाना चाहते हैं, या अगर नहीं भी जाना चाहते तो हफ्ते में वो 2 दिन यहाँ बैठते हैं, 2 दिन की छुट्टी होती है और 4 दिन वो अपने सदर मकाम जहाँ उनकी रिहाइश है लाहौर या उसके गिरदोनवा उसको तरजीह देते हैं। कागज़ों पे वो मुल्तान बैठे हुए हैं, हकीकतन वो लाहौर बैठे हैं। और इसी किस्म का ये इन्होंने एक मयार बना लिया था जब सेक्रेटेरिएट बनाया, अफसरात तैनात कर दिए लेकिन बैठे लाहौर में हैं। उनका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ाइल अगर लाहौर जानी है उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो ये फ़ैसला हुआ है कि अफसरान भी यहाँ बैठेंगे और फ़ाइलें भी यहीं निपटाई जाएंगी। ये भी फ़ैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब ने मुझे ख़ुद कहा है कि अगला पंजाब की काबीना का इजलास मुल्तान में मुनक़िद किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और फ़ैसला हुआ है कि हमने डिवीज़न की सतह पर डिविजनल कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। एक डिविजनल कमेटी होगी बहावलपुर की, एक डिविजनल कमेटी होगी देरा गाजी ख़ान की, एक डिविजनल कमेटी होगी मुल्तान की। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली वो उस कमेटी के मेंबरान होंगे और हर माह उसकी मीटिंग हुआ करेगी डिविजनल हेडक्वार्टर पर। जितने डिविजनल ऑफिसर्स हैं, चाहे कमिश्नर है, आरपीओ है, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो डीपीओज़ हैं, लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको मदऊ किया जाएगा ताकि अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल उनके सामने रखें और उनका हल तलाश करें कवानीन के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक, और जो लोगों के गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए। और अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग का एक हिसाब लिया जाए कि जिन चीज़ों की निशानदेही हुई थी उसमें पेशरफ्त हुई है, नहीं हुई, कितनी हुई है, ताकि इस एहतसाब के अमल से हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बढ़ाएं और डिलीवरी मैकेनिज़्म में बेहतरी लेकर आएँ। तो ये भी कल एक फ़ैसला हुआ है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल था गल्ला मंडी मुल्तान वलायताबाद में, बड़ी जद्दोजहद के बाद उसका PC1 भी हो गया और बड़ी जद्दोजहद के बाद उसका फ़ंड भी रिलीज़ हो गया। इंशाअल्लाह अनकरीब उसका टेंडर होगा और टेंडर के बाद उस काम का आगाज़ किया जाएगा। ये 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वलायताबाद में बनाया जाएगा और इसको निश्तर हॉस्पिटल के साथ अटैच किया जाएगा। एक निश्तर हो गया आपका, निश्तर 2 आपका सामने बन रहा है और इंशाअल्लाह ये निश्तर 3 होगा। और ये निश्तर 3 जो है इसकी जो वाइस चांसलर है निश्तर के, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका होगा, मैनेजमेंट देख बहाल, ताकि क्वालिटी की सर्विस और क्वालिटी की तैनातियाँ वहाँ हों। तो ये भी हो गया है और इस पर भी मैं इंशाअल्लाह हम रखना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा टेंडर हो जाए जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना, हाथ पक्का डालना चाहता हूँ, कच्चा नहीं डालना चाहता। और इंशाअल्लाह मेरी कल वाइस चांसलर साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा था हम टेंडर का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। जिस दिन टेंडर हो जाता है, टेंडर अलॉट हो जाता है, इंशाअल्लाह मैं संग बुनियाद इसका रखूँगा। अगला सवाल आपने किया हज़रत भाई मेरे, और वो था रूस के वज़ीर ख़ारजा। आपके इल्म में है कि एक दहाई के बाद तकरीबन सर्जी लैवरोव जो इस वक्त रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो मेरी दावत पर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। उनके साथ दफ्तर ख़ारजा में डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए
اور بہت اچھے ٹاکس ہوئے. ان میں ہم نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ان میں گہرائی لانی ہے, ان میں وسعت لانی ہے اور ون ون کوآپریشن کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. چنانچہ فیصلہ ہوا کہ اسی سال ماسکو میں بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز اور انٹر گورنمنٹل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے گا, جس میں روس, رشین فیڈریشن اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو اکنامک ریلیشننگ ہے اور ہمارے ٹریڈ ٹائز ہیں ان کو کیسے فروغ دینا ہے, ان کو کیسے پروموٹ کرنا ہے, اس پر تبادلہ خیال ہوگا. ہمارے منسٹر فار اکنامک افیئرز ڈویژن مخدوم خسرو بختیار صاحب سے میری بات ہو چکی ہے اور وزیر اعظم نے بھی ان کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ اس اجلاس کی تیاری کرے تاکہ وہ اجلاس جو ہے وہ پراپر ہوم ورک اور اسپیڈ ورک کے ساتھ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی جو ہماری ڈیفنس کی تعاون ہے اس پہ بھی بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے. روس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی کیپیسٹی ہے, اور انہوں نے پہلے تعریف کی پاکستان کی, افواج پاکستان کی, جنہوں نے بڑی کامیابی سے دہشت گردی کو شکست دیا ہے اور پاکستان کو اس لعنت سے پاک کیا ہے. اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے روس آپ کو اکوپمنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہے. پاکستان کی ریلویز کو ماڈرنائز کرنے کے لیے, پاکستان کے انرجی سیکٹر میں تبدیلیاں لانے کے لیے, ہماری پاکستان سٹیل ملز جو انہیں بنائی تھی اور اس وقت وہ آپ کے سامنے ہے, بند ہو گئی ہے, لاس کر رہی ہے, زبوں حالی کا شکار ہے, اس کے ریوائول کے لیے دعوت دی ہے ان کو میں نے کہ وہ بھی اپنا رول پلے کریں, اور انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اور بھی کچھ ایریاز ہیں جس پر ہماری بڑی عمدہ پیش رفت ہوئی ہے, بالخصوص افغانستان پر ہمارے ایمبیسڈر صادق جو اسپیشل انوائے ہیں, اور روس کے جو اسپیشل انوائے ہیں ایمبیسڈر کابلوف, وہ آپس میں ویلکم سر, وہ آپس میں ملے اور مل کر تبادلہ خیال کیا گیا. اور اس کے بعد وزیر خارجہ کی جناب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور اس کے بعد GHQ میں جنرل باجوہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی الحمدللہ کہ آج جو پاکستان کی افغانستان پر حکمت عملی ہے اور جو ہماری اپروچ ہے, روس اس پر مکمل اتفاق کر رہا ہے, اور ہم نے آگے مشاورت سے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے. چین اور ہماری سوچ ایک ہے. چین پاکستان مشاورت سے مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. ایران انشاءاللہ میں عنقریب ایران بھی جا رہا ہوں, اور میں ابھی تاجکستان سے ہو کر آیا ہوں جہاں میری تاجکستان کے صدر سے ملاقات ہوئی افغانستان کے معاملات پر اور دو طرفہ تجارت پر, ریجنل کنیکٹیویٹی پر. میری قزاقستان کے وزیر خارجہ سے نشست ہوئی, اور میں نے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کا جو پاکستان کے ساتھ ریجنل کنیکٹیویٹی میں جو ہمارا شفٹ ہے فوکس کا فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر جو تبادلہ خیال کیا, میں آپ کو بتاتے ہوئے یہ مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت پورا ریجن جو ہے, پورا ریجن افغانستان کے جتنے پڑوسی ہیں, ایک طرف پاکستان ہے, چین ہے, ایران ہے, تاجکستان ہے اور ریپبلکس ہیں, ہم میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. میری وہاں جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں دوشانبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پر ان پر تبادلہ خیال ہوا. ترکی کے وزیر خارجہ محترم چاوشولو سے میری وہاں ملاقات ہوئی, اور ہو سکتا ہے کہ ترکی میں بھی ایک نشست ہو جائے کہ ہم نے افغانستان کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یہ فارن پالیسی کے لحاظ سے بہت بڑی پیش رفت ہے, بہت بڑی پیش رفت ہے. میں حیران ہوں کہ
हमारे कई दफ़ा लोगों की मैं क्या कह सकता हूँ, नादानी कहूँगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट को छोड़कर वो ज़्यादा तवज्जो मीडिया दे रहा था कि छतरी नहीं पकड़ी हुई थी। भाई खुदा के लिए अब ये है हमें नहीं सर, इस छतरी की जो वीडियो सबसे पहले वायरल हुई है वो इंडिया की तरफ से हुई है। तो इंडिया देखे अच्छा क्यों अब मतलब भाई सोचने वाली बात है, क्या इंडिया चाहता था ये दौरा? क्या इंडिया चाहता था जो हुआ है? रवैया गलत था। सवाल ये है अब मैं सिर्फ एक आपको कहता हूँ, छोड़िए एक और तस्वीर भी शाया हुई जो पाकिस्तान से शाया हुई। इंडिया की तस्वीर आपने देखी, मैं पाकिस्तान की दिखाना चाहता हूँ और हमारे सोशल मीडिया के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने लेवरॉव की और जयशंकर की तस्वीर लगाई और नीचे आपके वज़ीर ख़ारजा की और लेवरॉव की तस्वीर लगाई। वो तस्वीर देख लें तो तस्वीर सब कुछ बता देती है कि उनके चेहरे के तासुरात क्या है और पाकिस्तान की मुस्कुराहट क्या है। तो ये जो एक शिफ्ट है ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसके लोगों को समझने की ज़रूरत है। सर ये जो आपने मुल्क गिनवाए हरगिज़ कोई ख़तरा नहीं है, आप मैं अर्ज़ कर दूं हरगिज़ कोई ख़तरा नहीं है। जितने मेंबरान हैं वो इमरान खान के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ का हर MNA हर MPA जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुआ वो अखलाकन असूलन कानूनन इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पाबंद है। सुन लें मेरी बात, सुन लें यार, सवाल किया जवाब तो ले लो ना। उसके अलावा कुछ आज़ाद लोग थे, आज़ाद लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उनको ज़बरदस्ती कोई लेकर नहीं आया था। उन्होंने आकर ख़त साइन किए थे, एफिडेविट साइन किए थे, वो हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के बेंचेस पर बैठना शुरू किया, अपनी आज़ाद हैसियत को सरेंडर किया और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। अब काबिल मोहतरम एहतराम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, स्ट्रगल में हमारे साथ चल रहे हैं। अगर उन्हें कोई तशवीश है तो इमरान खान के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो इमरान खान साहब से रुजू कर सकते हैं। इमरान खान साहब खंदा पेशानी से, फराख दिली से उनकी हर जायज़ बात सुनेंगे, हर जायज़ बात। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने दो बातें की हैं। नंबर एक, जो कुछ PDM वाले बगलें बजा रहे थे वो ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा नंबर एक, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, आपने सुन लिया। नंबर दो, हमें पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर ये इनका ख्याल है कि वो कोई नून में या पीपल पार्टी में जाएगा तो उनका कोई इरादा नहीं है और वो अपने हलके की आवाम को जवाब दे हैं। हाँ, उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी में नून में जाना है तो एक तरीका है उसका, अपनी सीट से इस्तीफ़ा दें, पार्टी चाहे। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ, मैंने वजारत छोड़ी, मैंने कौमी असम्बली की सीट में पीपल्स पार्टी की टिकट पर जीता था, मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ, मैंने हिस्सा नहीं लिया। वो जो बन गए मूसा साहब वहाँ से बन गए पीपल पार्टी की टिकट पे, ठीक है, हमने कबूल किया, हमने बर्दाश्त किया। ये होता है सियासी तरीका, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान का कोई इरादा नहीं है इंतकामी कार्रवाई का, किसी के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, किसी बिजनेस ग्रुप के ख़िलाफ़। उन्होंने जो कार्रवाई की है वो किसी एक ग्रुप के ख़िलाफ़ नहीं की। 17 के करीब मिले हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, उसमें एक तरीन साहब की मिल नहीं है, और भी हैं। अच्छा, जब कार्रवाई की जाती है, जब नहीं होती तो लोग कहते हैं कि जनाब ये एहतसाब का अमल क्या है। यही नून लीग वाले कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये कैसा एहतसाब का अमल है, यकतरफा एहतसाब है। और जब पीपल्स पार्टी, जब तहरीक इंसाफ वालों को भी कटहरे में खड़ा किया जाता है तो फिर कहना शुरू कर दे इंतकामी कार्रवाई है। ये इस तरह होता नहीं है। हर किसी को हक है, अदालतें आज़ाद हैं, मौजूद हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करें और अगर वो साफ़ है तो इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरीउल ज़िम्मा होंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो जवाब दे ठहरे। मैं जवाब कहते हैं कि जवाब दे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सवाल करें, जवाब दें, मुझे जल्दी नहीं है। आपकी तसल्ली, सब्र तो करो नहीं यार, अभी आपको जवाब देता हूँ, अभी देता हूँ। तो हमें कोई जल्दी नहीं है,
हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। एक चीज़ बता दूं, इमरान खान का एक नज़रिया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये बात सुन रहे हैं कि इमरान खान अपने नज़रिए पे कायम है। करप्शन का तदारुक और बेहकनी हमारे मंशूर का एक बुनियादी फ़लसफ़ा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और उसकी मिसाल आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा की है। 20 इलेक्टेड MPs ने जब एक बेअसूली की, हमने उनको पार्टी से अलहदा किया। ठीक है, हुकूमतें आती भी हैं, जाती भी हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज होते हैं पार्टी के, उन कोर इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इमरान खान बहसीत चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बहसीत वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने कोर इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इमरान खान किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे। इमरान खान अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को गले से लगाने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। जनूबी पंजाब का मसला हुआ, MNAs ने बात की, उन्होंने सबको बुलाया, सबको बिठाया, कल सबकी बात सुनी और फैसला कर दिया। ये होता है। जमात की बातें जमातों में होती हैं, जमातों की बातें जमातों में की जाती हैं, और इस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं वो मुनासिब मेरी नज़र में नहीं हैं। हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, हम उनके दरवाजे पे जाने के लिए तैयार हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, उनको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये फिर दोहरा मयार ना आए। अगर मरियम बीबी जाती हैं बंदे लेकर तो तहरीक इंसाफ कहे कि जी ये मुनासिब नहीं है, और तहरीक इंसाफ वही कुछ करना शुरू कर दे, तो क्या वो मुनासिब है? तो ये चीज़ें लोगों के सामने हैं और लोगों ने इन चीज़ों को सामने रखकर खुद फैसला करना है। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। अजय शाह साहब बताइएगा कि ये भी खबरें हैं कि जो वज़ीर आज़म साबिक़ा थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी जो कैंपेन के लिए जहाज़ इस्तेमाल किया गया जहांगीर तरीन का सेनेट के इलेक्शन में, जिस पे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं, इसी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। ये आप उनसे पूछ लें, आप उनसे पूछ लें जब तशरीफ़ लाएं कि हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरे इल्म में ये बात नहीं है, अच्छा सर, हमारा क्योंकि मैं उनके जहाज़ की जो लॉग बुक है वो मेंटेन मैं नहीं करता। शाह साहब, हमारा पार्लिमानी वफद अफगानिस्तान जा रहा था। हमारी तो अच्छी ख्वाहिशात हैं, वहाँ अमन हो, तमाम मामलात ऐसे तरीके से, लेकिन हमारे पार्लिमानी वफद को लैंड नहीं करने दिया। बिल्कुल तरीन साहब, ये आपके सामने है। हमारे स्पीकर की सरबराही में एक पार्लिमानी वफद खैर सगाली के दौरे पर ताल्लुकात को वुस्अत देने, दोस्ती का हाथ बढ़ाने काबुल तशरीफ़ ले जा रहा था। मेरी अभी स्पीकर साहब से इस पर गुफ्तगू नहीं हुई और मुतल्ला का हुकाम से मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं कल वज़ीर आज़म के साथ लाहौर था और फिर मुल्तान आ गया। इसकी तफसीलात मैं हासिल करूँगा। जो सरसरी इतलात हैं उनको जहाज़ को लैंड करने की न करने की वजह कहते हैं सिक्योरिटी कंसिडरेशंस थी, और उन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की खातिर उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अगर ऐसा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी उसका नोटिस लिया है और उसकी तहकीक कर रहे हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है, और उसी नज़रिए से हमारा वफद गया था। अच्छा साहब, ये आपने जितने ममालिक गिनवाए हैं, तुर्की, रशिया और ईरान, तो आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में कोई इसका कोई रीजनल ब्लॉक, इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं बनने के नहीं इम्कानात? नहीं, हम ब्लॉक्स की सियासत नहीं कर रहे, कोई ब्लॉक्स की सियासत नहीं हो रही। हमारी एक सोच है कि रीजन्स प्रॉस्पर एंड डेवलप। अब उस रीजनल अप्रोच को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर अफ़गानिस्तान में अमन आना है और अमन के बाद इंशाअल्लाह वहाँ रिहेबिलिटेशन होनी है, रिकन्स्ट्रक्शन होनी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनने हैं, तो वो रीजनल अप्रोच और रीजनल फाइनेंसिस की ज़रूरत होगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। वो अकेला पाकिस्तान नहीं कर सकता, पूरा रीजन मिलके करेगा। उसमें चीन रोल प्ले करेगा, रूस रोल प्ले करेगा और इंटरेस्टेड पार्टीज़ रोल प्ले करेंगी, तो उसके बेहतरी आएगी।
तो हमारी अप्रोच रीजनल कनेक्टिविटी की है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी की है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, रीजनल ग्रोथ की है, रीजनल ब्लॉक्स की नहीं है। अच्छा शासक, क्या भारत के साथ मुज़ाकरात चाह रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बार बार लिख रहा है? जी भारत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात देखिए, चाह रहे हैं जिसके बारे में इंटरनेशनल मैं अर्ज कर दूं, और सवाल भी लेने चाहिए। रिपब्लिकन के बाद जो डेमोक्रेटिक अमेरिका में हुकूमत आई है, उसके में तनाज़र में जो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन डेवलप हो रही है, इस डेवलपिंग में कहीं कश्मीर का इशू जिसे हम अपनी मैं समझ गया सवाल, आप फिक्र ना करें। नंबर एक, देखिए हिंदुस्तान के साथ हमारे कुछ मसाइल हैं, वो आपके सामने हैं। कश्मीर का मसला है, सरक्रीक का मसला है, सियाचिन का मसला है, पानी का मसला है और दीगर चीज़ें भी होंगी। उनमें कई इम्कानात भी हैं, इकनॉमिक इंटीग्रेशन है, ट्रेड है, कोविड कोऑपरेशन है, वैक्सीन डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज में बेहतरी है। कई चीज़ें हमारी कॉमन अप्रोच से बेहतर भी हो सकती हैं। अब सवाल ये है, हल क्या है? हमने अरसा दराज से हल तलाश करने की कोशिश की, हल नहीं निकला। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान के साथ मसाइल का हल जंग नहीं है। दो एटमी कुव्वतें जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चुनांचे रास्ता क्या है? गुफ्त शुनीद। उसके लिए इमरान खान ने क्या कहा? आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम दो उठाने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मैसेज है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग कंट्री। वी वांट गुड नेबरली रिलेशंस with all our neighbors including India। अब उसके लिए आगे कैसे बढ़ा जाए? डायलॉग के ज़रिए। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता, मंतकी रास्ता, दानिश का रास्ता इसके अलावा मुझे दिखाई नहीं देता। उससे फरार किसने इख्तियार किया? पाकिस्तान ने नहीं किया। मेज़ पे बैठना चाहते हैं, हम तैयार हैं। रुकावट क्या है? कश्मीर के लोगों को अगर आप कोई रिलीफ देते हैं, वहाँ जो इस वक्त जो एक जुल्म का बाज़ार गर्म है, अगर उसमें कोई बेहतरी आती है, वहाँ लोगों को रिलीफ मिलता है। जैसे कि सीज़ फायर का जो हमारा आपस में एक नई अंडरस्टैंडिंग दोबारा बहाल हुई है कि 2003 में सीज़ फायर की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, उसकी बहाली और वो कायम है। उसका फ़ायदा किसको हुआ? कश्मीरियों को हुआ। लाइन के इस पार और लाइन के उस पार कश्मीरियों को उसका फ़ायदा हुआ। सुकून मिला, चैन मिला, राहत मिली और वो खुश हैं। इसी तरह अगर वो कश्मीर के अंदर कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, डायलॉग के लिए कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं और करने की जुस्तजू करते हैं, पेशरफ्त करते हैं, तो हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है जो आपका सवाल था कि कश्मीर का सौदा हो जाएगा। वो हो ही नहीं सकता। बात होगी, मौक़िफ़ होगा, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, सलामती काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं। उनसे इनकार ना पाकिस्तान कर सकता है ना हिंदुस्तान कर सकता है। उस पराये के अंदर रहते हुए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो आपकी पहले दिन से ख्वाहिश है, आपने जब से इक़्तिदार संभाला है, कि भारत का रवैया जो है मुसलसल जारी है, ये और अभी भी उससे ये तवक्को रखना कि वो मैं अर्ज़ मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा, ये मैं अर्ज़ कैसे करूं, मुमकिन है? बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। अगर ये अब थोड़ा सा आपको हवा और लचक दिखाई दे रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अंदरूनी है। मकबूजा कश्मीर में जो इस सरकार ने पॉलिसी, बीजेपी सरकार ने अपनाई, वो पॉलिसी नाकाम हो गई। जबर से वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। उनका ख्याल था कि वो स्टेटहुड लेने के बाद वो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बारिश हो जाएगी, खुशहाली आएगी।
वो नहीं हुई। उनका ख्याल था कि लोग हम दबा लेंगे, उनने दबाने की कोशिश की हुई है। 9 लाख के करीब वहाँ फ़ौज तैनात है, लेकिन लोग तब ये सहम सकते हैं। नज़रिया नहीं बदला, सोच नहीं बदली, तवक्कुआत नहीं बदली, और उनको दबाया नहीं जा सकता, जज्बात को दबाया नहीं जा सकता। इजहार पे लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कई दफ़ा मसलहतन, लेकिन ये नहीं कि उनका जहन या उनका दिल या उनकी सोच तब्दील हो गई। तो उनको रेजिस्टेंस मिल रही है, पीपल्स रेजिस्टेंस, नंबर 1। नंबर 2, उन पर तनकीद हो रही है, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर पूरी दुनिया जो है वो सीख पा है। रिलीजियस फ्रीडम पर जो सवालात उठ रहे हैं, मस्जिदों को ताले हैं, मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलते, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, इस पर सवालात उठ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में, US कांग्रेस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबरान पार्लियामेंट सवाल कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों से सवाल कर रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज़, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर उनकी मईशत को कोविड की वजह से बेपनाह नुकसान हुआ है, उनकी ग्रोथ मनफी हो गई है, गिर गई है, इकॉनमी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वहाँ फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ हमने तो खैर सगाली का एक कदम उठाया था, ये अपना करतारपुर का। आज हमने कहा बैसाखी के लिए अगर सिख आना चाहते हैं तो पाकिस्तान तैयार है, आए, हम उन्हें अपने सिख भाइयों को खुशामदीद कहेंगे। आज रुकावट कौन है? पाकिस्तान नहीं है। बैसाखी की और जो उनकी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के सिखों की जो ख्वाहिश है, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अपनी हुकूमत को मना ले, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उनके इंटरनल आप देख रहे हैं, आज भी हरियाणा की और दिल्ली की सड़क बंद हो रही है, आज हरियाणा और दिल्ली का राब्ता मनक़ते है। तो ये पाकिस्तान ने नहीं किया, इंटरनल चैलेंजेस हैं, और वहाँ एक दानिश्वर तबका है, वो समझता है कि ये पॉलिसी नाकाम है और इस पॉलिसी पर नज़रसानी होनी चाहिए। उस तनाजुर में अगर अपनी सोच में कोई लचक दिखाते हैं तो हम तैयार हैं, और अगर अपनी सोच में लचक नहीं दिखाते तो हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं भी हिंदुस्तान में अपना दुशांबे में था, भारत के वज़ीर ख़ारजा ऐसे थे जैसे मतलब सामने बैठे हुए थे जैसे आप खड़े हैं। मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की उनसे मुलाकात करने की, मैंने कोई हाथ नहीं बढ़ाया उनकी तरफ। क्यों? इसलिए कि जब तक मुझे उनसे कोई मुस्बत इशारा ना मिले, हम उनके सामने बिला वजह घुटने नहीं टेकेंगे। बराबरी की बात करेंगे, बाइज्जत तरीके से बात करने के लिए तैयार हैं, घुटने नहीं टेकेंगे। सर, अक़वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीर से मुतालिक करारदादे हैं, यूनाइटेड नेशन भी तो नाकाम नज़र आ रहा है ना, उस पर अमल दरामद। तो हजूर वाला, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हल क्या है? हल है बैठकर गुफ्तगू, ये हल है। पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान तैयार है। मैं कहता हूँ कश्मीरियों के साथ जुल्म बंद कर दो, कश्मीरियों को सुख का सांस दो। मेज़ पे बैठने के लिए हम तैयार हैं, मेज़ पर बैठकर आंखों में आंखें डालकर दिल्ली जाकर गुफ्तगू करने के लिए मैं तैयार हूँ।